So last time we have done 2:1. Last time we did 2:1 multiplexer, and then we continued with, I showed you how to we draw 4:1 multiplexer. Okay. With that, now we will proceed with 8:1. 8:1, I had asked people to draw the diagram. Did all of you try drawing the diagram? हाँ ना, जो भी है बोल दो ना। नहीं तो नहीं, ये टाइम ही नहीं मिला ट्राई करने के लिए। अभी असाइनमेंट सबमिशन हो गया कि बाकी है अभी भी मेरा? No, ma'am, I have done it. ओके, सो क्विकली स्टार्टिंग। ओके, सो नाउ 8:1 multiplexer we are supposed to do. So this is the truth table for 8:1 multiplexer. In 8:1 multiplexer, we will have 8 inputs. Okay, n will be 8. So how many select inputs we will require for 8 inputs? If n is 8, m will be 3 because 2 raised to m is n. So 2 raised to 3 is nothing but 8. So we will have 3 select inputs. That is S2, S1 and S0. So with that, it will run with 8 combinations starting from 000 to 111. Okay, so other than select inputs, we will have enable input also. Enable input is the input which will switch on and off the circuit. So enable is a circuit which will switch on and off, means activate or deactivate the circuit. So if your circuit has to be on, the enable should be activated, means it should be in position 1. Okay. In that case, it goes in the same pattern. If S2, S1, S0 is 000, basically it is equal to decimal 0. So D0 input will get selected at the output terminal. If the input is 001, D1 input will get selected at the output terminal. If it is 010, D2 input, 011, D3 input, 100, D4, 101, D5, 110, D6, 111, D7. But for all these circuits to get, you know, to show you the proper working, enable should be high. If enable is low, then irrespective of select input, so it becomes a don't care condition. You can see over here that XXX is returned. So basically it is a don't care condition. Output will be 0. Okay. So now in this case, let's draw the diagram for 8:1 multiplexer. Understood the truth table, na? Similar to 2:1 and 4:1, all of you. Yes, ma'am. So here we are going to draw S2 input line, then we require S2 complement, S2 naught or S2 bar, S1, then we require S1 complement, S0,
and S0 complement. Just a moment. Okay. Just a moment. Now, as we have 8 inputs, D0 to D7, accordingly, we will have gates over here. So we have 8 AND gates. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. So first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So that you understand that there are 8 AND gates required because we are having a 8 input circuit. And then each of the inputs, like suppose say if it is D0, then D0 first will go to first AND gate, then D1, then D2, then D3, then D4. Like this, we will give each AND gate a single input. Okay. Now it comes to how do we access one AND gate at a time? That is how when the select inputs are selected, that particular input will get selected. So for that, what logic we apply is the reverse combination. If S2, S1, S0 is 0, 0, 0, D0 should get selected. So when we are giving all these inputs to AND gate, we will give it as they become 1. So it will become complement. S2 bar, S0 bar, S1 bar and S0 bar. Understanding now all of you? Are you Yes, ma'am. understanding? Yes, Huh. ma'am. Other than that, one more terminal is there which I forgot. That is enable. So after giving D0, you will connect enable terminal also. So one more enable terminal will be there. So this becomes the fifth input to all these AND gates, which has to be high. अभी 5 इनपुट वाले AND गेट्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे वैसे ही यूज करना पड़ेगा. 5 में से either you give 4 inputs to 4 input AND gate and then output of that along with the fifth input will be given to 2 input AND gate. ऐसे ही सर्किट आएगा जब भी हम प्रैक्टिकली ये सर्किट को ड्रॉ करते हैं. ठीक है. आइडियली 5 इनपुट वाले AND गेट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं. आइदर 2 इनपुट वाले होते हैं या 4 इनपुट वाले होते हैं. Then when S2 is 0, S1 is 0, S0 is 1, D1 should get selected. So you will give complements of zeros and 1 directly. So you will complement S2
and S1 and give S0 directly. Understanding now all of you what I'm doing? Same way D2. S2 will get complemented. Look at the truth table. Then S1 will go directly and S0 will get complemented. Are you understanding? Then D3. S2 will get complemented. S1, S0 will go directly. Students, I'm asking you something. Yes, ma'am. Then D4. S2 should be 1. So S2 will go directly. And S1, S0 are 0, 0. So they will get complemented and then they will go. Then 5 के लिए S2 gets complemented. Sorry, S2 goes directly. S1 gets complemented and S0 goes directly. Then 6 के लिए again S2 is directly. S1 is also directly and S0 gets complemented. And last के लिए सब direct. S2 because all three are high. S1, S0. ठीक है? Outputs of these together will be going to a OR gate. You're understanding now why I'm drawing diagram. You know the logic behind it ना. पता है ना मैं डायग्राम पूरा निकाल के क्यों बता रही हूँ मीन्स अभी भी ये टाइम पे जहाँ पे मेरा पोर्शन कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है ताकि तुम लोग सीख जाओ वो देख देख के बिकॉज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डायग्राम बुक में देख के ऐसे ही नहीं होते हैं तुम्हें अगर कोई अगर सामने निकाल के बताए तो वो ज्यादा समझ में आता है. Is this clear all of you? Is 8:1 multiplexer clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, moving on with the sums now. First sum. अभी इसके ऊपर बेस सम्स है ये 3 सर्किट्स हो गए अपने बेसिक मल्टीप्लेक्सर के. नाउ द सम्स काफी सारे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वंस करूंगी मैं. ओके, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 8:1 मक्स. अभी ये फंक्शंस अपना मिन टर्म वाला ही फंक्शन है. ठीक है, वही वाले सर्किट से. तो एफ ऑफ इक्वल टू समेशन ऑफ m 0 2 3 5 7. सो तो इसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से आएंगे. अभी फंक्शन को देख के यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसे देख के वी विल राइट डाउन फ्रॉम द क्वेश्चन. It is clear that first it specifies a minterm. Q because summation of m लिखा है. Second, maximum minterm position is 7. Maximum minterm specified is 7. Hence, the logic circuit has how many inputs? कितने inputs रहेंगे? 3. कितने? Yes, 3. वो अभी इधर लिया नहीं है. ऐसे अगर कुछ कुछ सम में दिया होता है f ऑफ a, b, c इक्वल टू समेशन ऑफ m और फिर क्वेश्चन, या फिर f ऑफ a, b, c, d इक्वल टू समेशन ऑफ m और फिर अंदर क्वेश्चंस.
अगर ये सिर्फ एफ ऑफ दिया है और समेशन ऑफ एम दिया है और कुछ इनपुट्स वेरिएबल दिए हैं, तो वेरिएबल को देख के पता चलना चाहिए। अगर 7 तक की इनपुट है तो 3 वेरिएबल वाले हो जाएंगे, या 6 तक की इनपुट है तो 3 वेरिएबल वाले हो जाएंगे जहाँ पे 7 नहीं है। बट अगर 11 तक ही इनपुट्स है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली लॉजिकली पता चलना चाहिए कि वो 4 इनपुट वाला होगा। या फिर सिर्फ 13 तक ही दिया है इनपुट्स तो वो 4 इनपुट वाला होगा। तो वो लॉजिकली तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? Students, are you listening, or you are still in the cold sleeping mode? कोल्ड सीजन का, विंटर सीजन का जो स्लीपिंग मोड होता है उसमें ही हो अभी भी तुम लोग? No, ma'am, we are listening. You're listening. हाँ, thank you. So maximum min term specified is 7. Hence the logic circuit will have 3 inputs. ठीक है, तो अभी ये कैसे बिल्डअप होगा? तो पहले तो हम मक्स निकालते हैं। एक पिन डायग्राम निकालने का है मक्स का। पिन डायग्राम यानी कि बेसिक लॉजिक डायग्राम। सो 8:1 मक्स, ध्यान दो, इजी है बहुत। हाँ, इस पे हम इनपुट्स डाल देंगे। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। फिर ये वेरिएबल्स सिलेक्ट इनपुट्स है, ए बी सी है, हमारा अनिबल है, और आउटपुट वाई। ये लॉजिक डायग्राम हो गया। बेसिकली इट इज नॉट अ सर्किट डायग्राम ऑल्सो। तो इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हमने डाल दी है। 8:1 मार्क्स का इनपुट्स डाले हैं 8। 3 सिलेक्ट इनपुट, दीज आर सिलेक्ट इनपुट्स। दिस इज enable एंड दिस इज योर आउटपुट y। तो अभी ये तुम्हें देख के कि कैसे, क्या तुम्हारा ट्रूथ टेबल क्या आता है बेसिकली इसका, इसमें एक्चुअली निकालने का जरूरत नहीं है ट्रूथ टेबल, बट फिर भी तुम्हें समझ में आना चाहिए करके बता रही हूँ मैं। तो ट्रूथ टेबल कैसे आएगा? मान लो अगर इनपुट्स तुम्हारे तुमने एबीसी कंसिडर किए, जहाँ पे ए तुम्हारा एमएसबी है। हाँ, तो सिर्फ इनपुट्स वेरी होंगे 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। राइट? तो आउटपुट वाई जब भी 0 0 है तो D0 सिलेक्ट होना चाहिए, फिर D1, D2, D3, बराबर है, ऐसे करके वो आएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे और एक छोटा चेंज है। अनेबल शुड बी इन हाई पोजीशन। अनेबल निकाला है तो अनेबल अगर 0 है तो ये सारे डोंट केयर बन जाएंगे। ये मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, तुम्हारे मिन टर्म पोजिशन देखो। मिन टर्म पोजिशन 0 0 मिन टर्म के लिए आउटपुट हाई रहेगा, तो 0 को भी सिलेक्ट होगा मिन टर्म पोजिशन। जब भी सिलेक्ट इनपुट 0 0 0 है तो इसके लिए हाई होगा, देन 2 के लिए हाई होगा, 3 के लिए हाई होगा, 5 के लिए हाई होगा, और 7 के लिए, ये लास्ट वाला 7 है, 7 के लिए हाई होगा। बाकी सबके लिए 0 हो। दिस इज व्हाट द मिन टर्म पोजीशन स्पेसिफाई एज वी हैव लर्न्ड बिफोर। तो उसके हिसाब से ही आएगा। तुम D0 सिलेक्ट करोगे, D2, D3, D5 और D7, ये सारे सिलेक्ट करके कॉमनली ऑल ऑफ देम यू विल गिव इट टू बाइनरी 1। बाइनरी 1 का मतलब क्या है? प्लस VCC, प्लस 5 वोल्ट, यानी कि बाइनरी 1। और जो बाकी सारे हैं, जो बाकी बचते हैं, यानी कि D1, D4, D6, वो हम देंगे ग्राउंड को। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? समझा क्या?
Yes, ma'am. समझा ना? Yes, ma'am. हाँ, बहुत ही इजी है ये, बट तुम्हें थोड़ा लॉजिकली सोच के रख के याद रख के करना चाहिए. नेक्स्ट, implement a full adder using 8:1 mux. मैम Full प्लस adder VCC मतलब? plus VCC means +5 volts डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम VCC वोल्टेज 5 वोल्ट ही होता है, तो वो होता है बाइनरी 1. ओके मैम, थैंक यू. समझा ना सबको? Yes, ma'am. Then next, implement a full adder using 8:1 mux. अभी full adder क्या है? Full adder is a circuit which will add 3 binary bits at a time. तो पहले तो हम full adder का सर्किट डायग्राम, सॉरी, ट्रुथ टेबल बना देते हैं. तो ये ट्रुथ टेबल है फुल एडर का. ए बी सी इनपुट से S is the sum output and C is the carry output. तो ये ट्रुथ टेबल तुम्हें ऑलरेडी पता है, राइट? जस्ट अ मोमेंट. ओके, तो अभी उसके हिसाब से हमें सर्किट डायग्राम निकालना है. हम्म तो सम वाला एक आउटपुट लॉजिक रहेगा और कैरी वाला एक आउटपुट लॉजिक रहेगा. ये ट्रुथ टेबल कैसे आता है तुम्हें एग्जैक्टली पता है. हाँ, तो हम 2 मक्स बनाएंगे 8:1 वाले. एक सम के लिए, एक कैरी के लिए. ओके, वही चीज बेसिक मक्स बनाएंगे. D0 से लेके D7 तक इनपुट्स होंगे दोनों में भी. फिर सिलेक्ट इनपुट्स होंगे S2, S1, S0. You can label them outside as ABC. एनेबल होगा जो हम VCC को देंगे. VCC का मतलब है बाइनरी 1. और आउटपुट होगा फर्स्ट मक्स के लिए वो सम आउटपुट होगा, सेकेंड मक्स के लिए वो कैरी आउटपुट होगा, S एंड C. तो ये बेसिक मक्स हमने 2 निकाल दिए बेसिक इसमें. अभी इस पे तुम ट्रुथ टेबल में ध्यान देना. लुक एट द सम टेबल. ठीक है, इसमें ये तुम्हारे मिन टर्म पोजिशन है. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. ठीक है, तो तुम 0th सिलेक्ट करो. सॉरी, 0 नहीं सिलेक्ट होगा, तुम्हें इधर ध्यान देना पड़ेगा. सम देखो, M1, M2, M4 और M7. These 4 are high. M1, M2, M4, M7. ये 4 inputs. You will give it to binary 1. Pins plus VCC 5 volts. ठीक है.
वैसे कैरी में भी देखो, कैरी में तुम कौन से दोगे, M3, M5, M6, M7, M3, M5, M6, M7. बाइनरी 1 प्लस VCC 5 वोल्ट्स। जो रिमेनिंग है दोनों के, वो जाएंगे ग्राउंड को। D0, D3, D5, D6, दिस विल बी ग्राउंडेड। यहाँ पे भी ऐसे ही D0, D1, D2, D4 will be grounded. So that becomes your full adder circuit diagram using 8:1 marks. Isn't it easy, all of you? Yes, ma'am. It's easy. Okay. अभी नेक्स्ट है, हमें इम्प्लीमेंट करना है 16:1 मक्स यूजिंग 2 8:1 मक्स। 2 8:1 मक्स यूज करके हमें 16:1 मल्टीप्लेक्सर कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो 16:1 का टेबल देखते हैं, बिकॉज वो हमने टेबल ही नहीं देखा है पहले, सबसे बड़ी बात। तो ABCD, okay, ABCD, let's say, are the select inputs to 16:1 mux, and Y is the output. तो 4 select inputs है, because 16 inputs है ना, तो n बना 16, तो m क्या बनेगा 4, 2⁴ is 16। तो 0 0 से 1 1 1 तक combinations vary होंगे। So when the select input says 0 0 0, D0 input should get selected. When it is 0 0 1, D1 should get selected. When it is 0 0 1 0, D2 should get selected. Like that, when it is 1 1 1 1, D15 will get selected. ठीक है। तो ये 16:1 का बेसिक ट्रुथ टेबल हुआ। अभी इसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 8:1 मक्स के द्वारा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अभी तुम 2 8:1 मक्स का डायग्राम देखोगे, बेसिक 8:1 मक्स का डायग्राम। तो वो है D0 से लेके D7 तक इनपुट्स होते हैं, एनेबल होता है, S2 S1 S0 सिलेक्ट इनपुट्स और Y आउटपुट। ऐसे मैंने दोनों में बना दिए। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जस्ट पे अटेंशन। हाँ, ये टेबल को हम डिवाइड करेंगे 2 हाफ्स में, ठीक है। और ये जो A है, ये हम कंसिडर करेंगे अनेबल। तो ये जब भी अनेबल लो है, हमें सर्किट ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि जब भी अनेबल लो है, यानी कि A लो है, तभी फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होगा। फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर यानी कि कौन सा वाला, ये वाला, दिस इज फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर, ये एक्टिवेट होगा। ठीक है। उसमें लेट्स कंसिडर नाउ BCD एस S2 S1 S0। तो जब भी हम वो वेरी करेंगे 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, तो अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट्स मिलेंगे D0 से लेके D7 तक। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट इसमें, ओके, नेक्स्ट इसमें एनेबल हाई हो गया तो सेकेंड वाला मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होगा। तो उसमें अभी हम फोकस करेंगे ये वाले टेबल पे। तो यहाँ पे भी हम BCD we are considering as S2 S1 S0. So when it is varied with 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, तो D0 से D7 सेकेंड मल्टीप्लेक्सर का एक्टिवेट होगा। तो वो हम सिर्फ क्या अभी चेंज करेंगे, जो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर का D0 से D7 है, वो हम चेंज कर देंगे D8 to D15। Did you understand now up till here, all of you? Yes, ma'am. Okay. तो अभी we'll go in this pattern. See, so first multiplexer D0 to D7 is actual
16:1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट D0 टू D7, सेकेंड मल्टीप्लेक्सर के D0 टू D7 है, दे आर इनपुट्स ऑफ 16:1 है D8 टू D15। अभी दोनों के BCD कॉमन है, यानी कि S2 S1 S0 कॉमन है, तो उसे हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू लेबल देम एज BCD। B C D। अभी A कैसे निकालते हैं? A यानी कि तुम्हारा अनेबल हो गया। अगर अनेबल लो है तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होना चाहिए। जब भी अनेबल लो है तो वो जो A है वो कॉम्प्लीमेंट होके फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर के E इनपुट में जाएगा। So that when you are giving A as actually low, first multiplexer will get activated because you are passing that input to and to NOT gate। हाँ, और वो जो A है, जो भी 0 है, वो डायरेक्टली जाएगा तुम्हारा सेकेंड मल्टीप्लेक्सर के एनेबल इनपुट में, ताकि जब भी A लो है तो सेकेंड डीएक्टिवेट होगा, तो सेकेंड मक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this becomes your select input lines of 16:1 mux। फिर दोनों के जो आउटपुट्स है, दोनों के वाइज, that will be giving it to a OR gate to achieve a common output Y of the 16:1 mux। So now this becomes your 16:1 multiplexer, where A, B, C, D are the inputs to 16:1 mux। D0 to D15 जो लेवेंडर कलर में निकाला है वो इनपुट्स है, और Y आउटपुट है। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट देखो, implement the following function using 8:1 mux। फंक्शन है f of summation of m 0 1 4 8 10 14 15। 0 1 8 10 14 15। तो ये तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 8:1 मक्स, यानी कि बेसिकली अगर ये तुम इनपुट देखोगे तो इनपुट्स क्या है? व्हाट आर द इनपुट्स? Inputs are actually for which multiplexer, all of you? Students, I'm asking you something and expecting a response from you. हाँ, students, are you there or am I there, or the signal is not there? You are able to hear me now, all of you? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? हम्म, बोलो।
इनपुट्स में दिया है 0, 1, 4, 8, 10, 14, 15। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? 4 variable inputs हैं मैम। हाँ, 4 वेरिएबल वाला इनपुट है, बट तुम्हें अभी दिया क्या है इसमें? हाँ, व्हाट इज गिवन टू यू? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस। इनपुट है 4 वेरिएबल वाला, बट तुम्हें वो कंस्ट्रक्ट करना है 8:1 मक्स यूज करके। हाँ, तो वो तुम कैसे करोगे? Ma'am, by using two 8:1 marks boxes, like जो पहले किया था वैसे। नहीं, वो तुम एक ही सिंगल 8:1 मक्स यूज करोगे। अभी यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या बता रही हूँ। 2 मिनट, मैं ये निकाल देती हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा मुझे क्या। अच्छा, ये नहीं निकालना चाहिए था। ठीक है, मैं पूरा ही निकालती हूँ, मैं बताऊंगी क्या कर रही हूँ मैं। वरना ऐसे डायरेक्ट देख के तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम लोग के लिए। सिर्फ मैं टेबल रखती हूँ। ओके, सो अभी 8:1 मक्स में ये मैंने बेसिक उसका डायग्राम निकाला है। ठीक है, D0 to D7 इनपुट्स, ABC सिलेक्ट इनपुट, Y आउटपुट, एकदम बेसिक डायग्राम निकाला है। The maximum minterm value in the given question is 15. So we have 4 select inputs required. तो अभी टेबल पे हमें वर्क करना पड़ेगा, ध्यान देना। अभी ये टेबल दिया है, इसका आउटपुट लिख लो अभी। ठीक है, हाँ, मिन टर्म पोजिशन है। आउटपुट किस किस के लिए 1 आएगा? 0 मिन टर्म के लिए, समझा ना? 1 के लिए, 4, 8, 10, 14, 15। समझा क्या? 0, 1, 4, 8, 10, 14, 15। ये कहाँ से लिया तुम लोग को समझ में आया ना? मैंने ये क्वेश्चन से लिया है मैंने। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग यूजिंग 8:1 मार्क्स। सो ये जो मेरे मिन टर्म पोजिशन दिए हैं क्वेश्चन में, 0, 1, 4, 8, 10, 14, 15, वो मैंने सब हाई बना दिए यहाँ पे आउटपुट में। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी इसमें ध्यान देना तुम लोग। हाँ, यहाँ पे देखो, ये 0 वाला मिन टर्म पोजिशन और 1 वाला मिन टर्म पोजिशन, उसके इनपुट्स देखो क्या है। 1, 1 इनपुट्स है, 1, 1। तो ये दोनों मिला के, दोनों के लिए कॉमन वैल्यू है आउटपुट का 1। तो बेसिकली इनका फंक्शन हुआ 1 दोनों का। ठीक है, सो 8:1 मक्स के लिए ये बनेगा हमारा D0 इनपुट। हम कॉम्बिनेट करते जाएंगे, फिर ये नेक्स्ट 2 जो है ये बनेगा हमारा D1 इनपुट, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। तो ऐसे कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
अभी आउटपुट में मैंने वन डाल दिया था, जीरोस डाल दो, तो यहाँ पे 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0 0 0 0 0 0। तो D0 इनपुट जो है मेरे फर्स्ट टू कॉमन मैंने लिए, फर्स्ट दो को मैंने कॉमन इनपुट्स बनाया, तो उसका फंक्शन आता है 1, यानी कि बोथ द इनपुट्स जो है 0 0 0 और 0 0 1 के लिए मेरा फंक्शन आउटपुट आएगा 1 एज पर द मिन टर्म पोजिशन। सो D0 का बेसिकली फंक्शन आउटपुट है 1। हाँ, वैसे ही यू लुक फॉर D7, यहाँ पे देखो लास्ट रो में ये वाले, इसका भी सेम फंक्शन आउटपुट है दोनों का, इसका भी फंक्शन वैल्यू आता है 1। ठीक है, फिर तुम D3 देखो। हाँ, इवन ये भी D1 देखो, इसका आउटपुट भी सेम है दोनों का, जो दो मैंने पेयर्स लिए हैं इनपुट में उसका दोनों का आउटपुट सेम है 0 0। हाँ, तो इसका फंक्शन आउटपुट बनेगा 0। ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जहाँ पे फंक्शन आउटपुट सेम है। यहाँ पे भी D6 में ये इनपुट और ये इनपुट, इनका फंक्शन आउटपुट भी 0 0 है, तो ये हम लिख देंगे 0। ठीक है, और किधर है D3, ये वाले, ये और ये वाला, इसका भी सेम है 0। ठीक है, so we have selected those pairs right now and given them a common function output because in the actual truth table given with respect to the minterm their output values are similar। तो वैसे D0 का एक्चुअल फंक्शन आउटपुट वैल्यू आता है 1, D1 का 0, D3 का 0, D6 का 0, D7 का 0, बिकॉज दोनों के पेयर के इनपुट्स कॉमन है। जो बचे हुए हैं वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्स है एक दूसरे के। द रिमेनिंग वन आर द कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट, हाँ, इनका अभी तुम आउटपुट कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे मैं ये इसके लिए लिखूंगी डी कॉम्प्लीमेंट या फिर डी बार। हाँ, मीन्स ये जो ABCD है, ये ABCD को ABCD न लेते हुए मैं कंसिडर करूंगी S2 S1 S0, S2 S1 S0, यहाँ पे S2 S1 S0, और D जो है ये मैं रखूंगी ऐसे ही। हाँ, ये कॉम्बिनेशन लाने के लिए। फिर वैसे ही D4 में दिस वन एंड दिस वन, ये भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी ये आएगा D बार, बिकॉज लास्ट लाइन है, और नेक्स्ट लाइन भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। तो ये भी आएगा, दिस ऑल्सो विल कम एज D बार। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो अभी जो ये फाइनल टेबल मिला है इसके हिसाब से डायग्राम आएगा। हम्म, तो अभी डायग्राम क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से एक अपना ध्यान देना, D0 is plus VCC and D7 is plus VCC। तुम देखोगे टेबल में तो D0 और D7 1 है, यहाँ पे देखो ये दोनों जगहों पे, तो मैंने उनको प्लस VCC दे दिया। अभी जीरोस को मार्क करो। D1
D1, फिर D3, हाँ, फिर D6, ये ग्राउंड में जाएंगे। हाँ, और जो लास्ट वाला है अभी D बार वाला, उसे ले लो साइड में। D2, D4 और D5 ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो ये जाएंगे तुम्हारा सिलेक्ट इनपुट D को। तो A B C और ये D बन गए तुम्हारे सिलेक्ट इनपुट्स, दिस ऑल टुगेदर। Of your 16:1 marks table. Did you understand, all of you? समझ में आया क्या सबको? Ma'am, बोलो बेटा। why did we take one table instead of two? Instead of two, Like जो पहले implement the following using. See यहाँ पे ये वाले में तुमने तुम्हें 16:1 into 2 8:1 कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रॉम टू okay 8:1, यानी कि 2 8:1 मिला के एक 16:1 बनता है, वो बराबर है, दैट्स फाइन प्रॉपर। ये इजी है समझने के लिए। 8 + 8 16, यहाँ पे तुम रिड्यूस कर रही हो, okay तुम 16:1 जो है तुम्हें रिड्यूस करके 8:1 से कंस्ट्रक्ट करना है, अपोजिट हो गया ना। तो तुम्हें जो okay तुम्हारे 16 इनपुट्स है, मीन्स तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से वो 16:मार्क्स होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम इनपुट इज 15, तो उसमें 4 सिलेक्ट इनपुट्स आएंगे। तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन फॉर, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये 16:1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, दिस वन। Hmm. Yes ma'am. बट तुम्हें वो कंस्ट्रक्ट कहाँ से करना है? 8:1 से। तो तुम्हें 8:1 को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो तुमने रिड्यूस कैसे किए? पहले तो तुमने 16:1 का टेबल निकाला और आउटपुट मिन टर्म्स के हिसाब से लिख के लिया जो क्वेश्चन में है, ठीक है? दैट इज वाई। वो लिख लेने के बाद तुमने कॉम्बिनेट किए। क्या कॉम्बिनेट किए तुमने? अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे मैं बताती हूँ तुम्हें, और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इसका ये ABC सेम है दोनों का। इसके लिए मैंने 1 2 0 1 2 3 4 5 ऐसे कॉम्बिनेट किए हैं। ये दोनों का ये सेम है, ABC सेम है दोनों का, तो इसके लिए मैंने वैसे कॉम्बिनेट किए। सिर्फ डी चेंज हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1। समझा क्या सबका? Yes ma'am. हाँ, अभी जब भी डी चेंज हो रहा है तो अभी हमें ध्यान देना है आउटपुट पे। तो अगर मैं फर्स्ट टू के आउटपुट पे ध्यान देती हूँ, मिन टर्म 0 एंड मिन टर्म 1 पे, तो दोनों के लिए आउटपुट 1 है। हाँ, तो वो डायरेक्टली आउटपुट फंक्शन वैल्यू उसका 1 बनेगा, ठीक है? बट नेक्स्ट में 0 है तो डायरेक्टली 0 बनेगा, बट नेक्स्ट में कॉम्प्लीमेंट है 0 1, तो ऑब्वियसली वो डी बार से आएगा, बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर डी 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट 1 होना चाहिए इसके लिए, उसके हिसाब से। समझा क्या? Yes ma'am. यहाँ पे भी मैंने एक क्या गड़बड़ किया, ये कॉम्प्लीमेंट से जाना चाहिए, वो मैंने निकाला ही नहीं, मैं भूल गई। ये कॉम्प्लीमेंट से जाएगा ना, नॉट गेट यूज ही नहीं किया। ये डी है तो ये डी बार जाएगा, D2 D4 और D5। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. So that completes our multiplexer, starting with demultiplexer. Demultiplexer उसका opposite है, it is a data distributor. हाँ,
डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि इसमें एक सिंगल इनपुट रहता है और मेनी आउटपुट्स रहेंगे। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ मक्स। मक्स में मेनी इनपुट्स थे, वन आउटपुट था। डीमल्टीप्लेक्सर या डीमक्स में एक इनपुट होता है, मेनी आउटपुट्स होते हैं। तो जो एक इनपुट है वो कौन से आउटपुट टर्मिनल में रिफ्लेक्ट होगा? रिफ्लेक्ट का मतलब है भेजा जाएगा, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि अगर मैं डेटा इनपुट यहाँ पे 1 देती हूँ, तो वो 1 कहाँ पे 1 आने वाला है? फर्स्ट पोजीशन में 1 आने वाला है, सेकंड पोजीशन आउटपुट पे 1 आएगा, या लास्ट पोजीशन आउटपुट 1 आएगा? दैट विल डिपेंड अपॉन सिलेक्ट इनपुट्स। That's why the demux combination or configuration is given as 1:m, 1 input and n outputs. This will also have m select inputs. So the formula will remain the same. 2 raised to m is equal to n. सिर्फ यहाँ पे demux में n बन गया output. ठीक है, इसमें भी enable terminal होता है, but enable is our data terminal only. ये जो data input है वही enable की तरह serve करता है demultiplexers में. So let's start with a basic one. 1:2 demultiplexer. ठीक है, 1:2 demultiplexer. तो ये उसका बेसिक टेबल आया। डीमल्टीप्लेक्सर का डेटा इनपुट है जो कि अनेबल की तरह भी सर्व करेगा, उसे हम कहेंगे डी इन। अभी 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर है, यानी कि 2 is n, that is output. Now 2 raised to m is 2. So therefore what will m become? 1. So we will have one select input, S0, and two outputs, Y0, Y1. तो जब भी S0 0 है तो Y0 सिलेक्ट होगा, यानी कि ये जो 1 है वो Y0 को ट्रांसफर होगा, वो केस में Y1 0 रहेगा। और जब भी S0 1 है तो Y2 सिलेक्ट होगा, यानी कि जो डेटा इनपुट है वो Y1 टर्मिनल, सो 2 नहीं, Y1 टर्मिनल को ट्रांसफर होगा। But when data input is 0, that means enable is 0, means circuit is deactivated. So irrespective of select inputs, output will be 0, 0. Is this truth table clear to everyone? Yes, ma'am. So moving on with the basic diagram, please pay attention all of you. तो दो आउटपुट्स है तो ऑब्वियसली दो एंड गेट्स होंगे। फर्स्ट एंड गेट, सेकेंड एंड गेट। उनके आउटपुट्स जो है वो हमारे डीमक्स के आउटपुट्स बनेंगे, Y0 एंड Y1। हाँ, और S0 टर्मिनल हमारा सिलेक्ट इनपुट्स। So when it is 0, first AND gate should get selected. तो बेसिकली ये 0 कॉम्प्लीमेंट होके फर्स्ट AND गेट के 1 इनपुट को जाएगा और डायरेक्ट जाएगा सेकेंड AND गेट को। तभी तो जब भी S0 0 है तो ये 0 1 बन के फर्स्ट AND गेट को एंटर करता है और 0 बन के सेकेंड AND गेट को एंटर करता है। तो जब भी S0 0 है तो फर्स्ट AND गेट इज गेटिंग सिलेक्टेड। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन D0 इनपुट। तो D0 यहाँ पे जाएगा डायरेक्टली और वही D0 यहाँ पे भी जाएगा डायरेक्टली। और जब भी S0 1 है तो भी सेकेंड AND गेट सिलेक्ट होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? So that's the basic logic diagram of your 2:1 demultiplexer. D in लिखते हैं हम इसे। समझ में आया क्या सब लोगों को? स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. क्योंकि ये डी इन तुम्हारा हमेशा 1 ही होना चाहिए एंड डीमक्स एक्टिवेट होने के लिए, तो यहाँ पे ये सिंगल सिंगल इनपुट 1 बन गए। ठीक है, नाउ इट विल डिपेंड अपॉन S0। अगर मैंने S0 0 दिया तो वो कॉम्प्लीमेंट होके 1 बन जा रहा है और 0 डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है। तो सेकेंड AND गेट डिसेबल हो गया, फर्स्ट AND गेट एनेबल हो गया, आउटपुट Y0 will be 1. That means D0 is getting transferred to output Y0.
उसी तरह से अगर मैं डी इन 1 दे रही हूँ तो ये वापस 1 1 बन रहा है, और मैं S0 दे रही हूँ 1, तो ये डायरेक्टली 1 जाएगा सेकेंड एंड गेट को और कॉम्प्लीमेंट होके जाएगा फर्स्ट एंड गेट को। फर्स्ट एंड गेट का एक सिंगल इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट विल बी 0। सेकेंड एंड गेट का output will be 1. So Y1 output is 1. That means D in is getting outputted at the second output terminal, which is Y1. Did you understand now, all of you? यही लॉजिक बिल्डअप होगा 1:4 और 1:8 के लिए भी। स्टूडेंट्स, Yes, Yes, ma'am. ma'am. coming to now 1:4 demultiplexer. So T in is a data input over here. It is having 4 outputs. So N is 4. So hence what will be M? M will be 2 because 2 raised to 2 is 4. So this circuit will have 2 select inputs. So truth table will go as input output. Input is select inputs S1 S0. And यहाँ पे हमने अलग से enable भी दिया है. Enable is nothing but your data input. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. This is your D in. Okay. तो वो जब भी हाई है तभी सर्किट एक्टिवेटेड है और वो 1 ही पास होने वाला है. So when S1 S0 is 0 0, Y0 will get selected. So D in, that is 1, will come at the Y0 position. When 0 1 है तो Y1 position, 1 0 है तो Y2, 1 1 है तो Y3, and other remaining outputs will be 0. Accordingly वो select होते जाएगा. When enable is 0, irrespective of select inputs, output of all the output terminals of demultiplexer is 0. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Ma'am, can you please explain output वाला point? हाँ, ये टेबल कैसे हुआ? आउटपुट्स है ना, जब भी 0 है तो फर्स्ट आउटपुट सिलेक्ट होता है Y0, 1 है तो सेकंड आउटपुट सिलेक्ट होता है Y1. आउटपुट सिलेक्ट होना यानी कि क्या? वो आउटपुट टर्मिनल सिलेक्ट होना इनपुट भेजने के लिए. इनपुट क्या है? तुम्हारा एनेबल इनपुट या डी इन इनपुट. तो जब भी 0 0 है तो Y0 सिलेक्ट होगा, तो डी इन जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, बाकी सब 0 रहेंगे. जब भी सिलेक्ट इनपुट तुम 0 1 दे रहे हो तो ये जो इनपुट वाला 1 है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, बाकी सब 0. जब भी 1 0 है तो थर्ड output will get selected Y2. So output will be high, remaining all will be 0. And when we are giving it as 1 1, fourth output is getting selected. So that is 1, remaining are 0 0. This is clear now? Yes, ma'am. 2 minutes. Sir. So now we go on for the logic diagram of 1:4 demultiplexer. So please pay attention. So here as we see, we have 4 outputs. So we will require 4 AND gates. First AND gate, second AND gate, third AND gate, fourth AND gate. Y0, Y1, Y2, Y3. Now D in, basically common input will be given to all the AND gates. Commonly. सिलेक्शन होगा बाकी सब के हिसाब से.
फिर अलग से हम स्ट्रोब भी इसमें बताते हैं, जरूरत नहीं है बट फिर भी, ताकि सर्किट को हम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सके। स्ट्रोब इज बेसिकली योर अनेबल स्ट्रोब इनपुट। Now it will depend upon S0, S1. So first we draw S1 complement of S1, S0 complement of S0। ठीक है, now we go on। S1 S0 0 0 है तो first AND gate should give you high output, remaining should be low. That means they will go as complements in the first AND gate, so that everything becomes high to the first AND gate and first AND gate output is 1। सेकेंड में S1 0 है, S0 1 है, तो S1 0 है तो उससे हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी उससे हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और S0 1 है तो वो हम डायरेक्टली देंगे। थर्ड इसमें S1 1 है तो वो डायरेक्टली आएगा, और S0 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंट होके आएगा, और लास्ट में दोनों हाई है तो दे विल कम डायरेक्टली S1 and S0। Did you understand, all of you? Yes, ma'am. अभी प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही बिल्डअप होगा 8:1 and so on। So let's consider the first problem। है ओके, ये फुल एडर वाला, हाँ मुझे फुल एडर वाला करना है, सॉरी। प्रॉब्लम 1, तो क्वेश्चन इरेज हो गया। जैसे हमने फुल एडर इम्प्लीमेंट किया था डीमक्स मक्स यूज करके, अभी वैसे ही फुल एडर इम्प्लीमेंट करेंगे डीमक्स यूज करके। इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। तो पहले तो टेबल निकालना पड़ेगा, टेबल भी मैंने इरेज किया, क्यों इरेज किया पता नहीं। ठीक है, इनपुट्स, let's take them as ABC। So 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। हाँ, उसके अलावा डी इन इनपुट होगा जो 1 होना चाहिए ताकि सर्किट एक्टिवेटेड है। हाँ, और फिर दो आउटपुट्स होंगे उसके, सम एंड कैरी। तो 0 + 0 + 0 सम 0 कैरी 0, 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी 0, sum 1 carry 0, 0 + 1 + 1 sum 0 carry 1, then sum 1 carry 0, sum 1 carry 0, sum 1 carry 0, sum 1 carry 1। Huh? You know this table, no, all of you? I don't need to explain you now. Students, We know this table, ma'am. thank you so much.
सी मैं पूछती हूँ, क्योंकि वरना क्या हो जाता है, ये सब ऑनलाइन इसमें ना, द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. In class, I just look at your faces and I am able to understand. That time I don't ask like a fool every time. समझा क्या समझा क्या? Because क्लास में तुम्हारे चेहरे देख के ही पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक मेरा सर्किट ट्रिगर होता है. समझ में आए तो मैं कंटिन्यू करते जाती हूँ, जहाँ पे मुझे एक हाथ चेहरा दिखा जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं मोड में चली जाती हूँ. आई विल स्टार्ट रिपीटिंग अगेन. सो दैट्स ऑटोमेटेड. बट ये ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में ये चीज नहीं कर पाती हूँ, करके मैं पूछती रहती हूँ. अभी आदत हो गया लास्ट ईयर से पूछने का. सो फर्स्ट वी विल नाउ ड्रॉ 8:1 marks. सॉरी, 1:8 D marks. ठीक है, 1:8. इसमें 1 इनपुट है, बी इन, which will be at logic 1, or you can show it as VCC also, and 3 select inputs है, A, B, C. Actually will be labeled as S2, S1, S0 as per proper logic. और 8 आउटपुट्स होंगे, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. तो ये बेसिक डायग्राम हुआ 1:8 मार्क्स का. समझा ना, एग्जैक्टली एज डी मार्क्स है. ये डी मार्क्स का डायग्राम हुआ एग्जैक्टली एज मार्क्स. मार्क्स में चेंज क्या था? 8 इनपुट से 1 आउटपुट था. डी मार्क्स में चेंज क्या है? 1 इनपुट है, 8 आउटपुट है. दैट्स इट. नोटेशन चेंज हो रहे हैं. वहां पे मार्क्स में हमने इनपुट्स दिए थे D0, D1, D2, D3, सो ऑन. यहाँ पे डी मार्क्स में सिंगल इनपुट है D, और आउटपुट्स काफी सारे हैं, Y0 to Y7. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ. अभी इसमें सिलेक्ट कैसे करना है देखो. पहले हम सम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, सम में देखो मिन टर्म पोजिशन ये वाला, क्या कौन से पोजिशन है? 1, 2, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया शायद. यहाँ पे ये सम 0 कैरी 1, सम 1 कैरी 0. यहाँ पे भी ये कोई बोल भी नहीं रहा है मुझे. वन प्लस जीरो सम 0 कैरी 1, 1+1+0 सम 0 कैरी 1. बराबर है. अभी टेबल ध्यान दो मैं क्या कर रही हूँ. तो मिन टर्म पोजिशन, दीज आर मिन टर्म पोजिशन. लेट्स से M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. तो M1, 2, 4 और 7. हाँ, ये तुम्हारा सम आउटपुट्स बनेंगे. तो 1, 2, 4 और 7. This together will go to a OR gate, and this output Y will be labeled as sum output or S. Because commonly whenever they are one, sum should be 1. So वो 1 बनते जाएंगे जैसे तुम सिर्फ इनपुट सिलेक्ट करते जाओगे. जो भी कोई भी एक सिलेक्ट होगा उसके हिसाब से OR gate will give you high output. सेम वे नेक्स्ट का. अभी नेक्स्ट ध्यान दो. कैरी के लिए 3, 5, 6, 7. So 3, 5, 6 और 7 यहाँ से ही ले सकते हो ज्वाइन करके.
तो ये आउटपुट y बनेगा तुम्हारा कैरी आउटपुट। अंडरस्टूड? y0 विल नॉट गो एनीवेयर बिकॉज इट्स ऑलवेज 0। समझा क्या सब लोगों को? Yes, ma'am. That is full adder using a demultiplexer circuit. Next, ध्यान देना, implement the following functions using suitable demux and logic gates. हाँ, तो यहाँ पे 3 फंक्शन साथ में मिला के तुम्हें कंबाइन करके डीमक्स में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तीनों सर्किट साथ में मिला के तुम्हें कंबाइन करके डीमक्स में प्रेजेंट करना है। तो वो तुम कैसे करोगे? हाँ, बाय यूजिंग सुटेबल मक्स एंड डीमक्स एंड लॉजिक गेट्स। तो तीनों जो तुम्हें फंक्शंस दिए हैं, तीनों फंक्शंस के जो तीनों इनपुट्स है, मींस द सिलेक्ट इनपुट्स है, वो कॉमन है ABC। y1 it is function of f1 a comma b comma c equal to summation of minterm 0 1 3 5 6। f2 है 0 1 2 4 6 और f3 है 1 2 3 6। सिर्फ ड्रॉ करना है लॉजिक डायग्राम। तो ये कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट डीमक्स ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, तो पहले डीमक्स ड्रॉ कर दो। ये तभी मैंने ऐसे ही ब्लैक स्लाइड ट्राई किया था, करके ये ब्लैक आया। मुझे ट्राई करना था कि कैसे दिखाई देता है, फिर बच्चों ने मना किया तो वापस मैं व्हाइट पे आ गई। तो अभी ये मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, वैसे का वैसे रखा है। तो 1:8 डीमक्स। ठीक है, इसके लिए हमारा इनपुट होगा dn, दिस इज डेटा इनपुट which will be at logic 1। हाँ, देन इसके अलावा अनेबल होगा which should be at VCC y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। ठीक है, ये आउटपुट्स हो गए। तो ये बेसिक डीमक्स का डायग्राम हुआ। अभी इसमें ये बेसिक डीमक्स का डायग्राम समझ में आया ना? डेटा इनपुट, आउटपुट्स और एनेबल टर्मिनल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इसके अलावा हमें कुछ और दिखाना है इसमें। क्या दिखाना है? सिलेक्ट इनपुट्स भी Ma'am, आएंगे ना? inputs. हाँ, सिलेक्ट इनपुट्स S2 S1 S0। ठीक है, वो आएंगे। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक डायग्राम बन गया। अभी ये सर्किट इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो ध्यान देना। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट फंक्शन में सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, क्या है, कौन से आउटपुट्स लेने हैं? 0 1 3 5 6 कंबाइन कर दो उन सारों को। 0 1 3 5 6। ये जाएंगे एक सिंगल और गेट को, जिसका आउटपुट बनेगा तुम्हारा y1 आउटपुट। हाँ, which will be high for 0 1 3 5 6। Did you understand, all of you? Yes, ma'am. नेक्स्ट नेक्स्ट हम चूज करेंगे 1 चाहिए हमें, सॉरी 0 1 2 4 6 चाहिए। तो 4 जाएगा, 2 जाएगा, फिर 0 1 भी जाएगा। तो 1 जाएगा और 0 जाएगा।
ये हम देंगे सेकेंड और गेट को, आउटपुट बनेगा y2। Ma'am, 6 is also there, ma'am. हाँ, इसमें 6 भी है, सॉरी, बराबर किया क्या मैंने, 0 1 2 4 6, 0 1 दिया, 2 दिया, 4 दिया, हाँ 6 भी आएगा, सॉरी, यस, वेरी गुड। ठीक है, देन नेक्स्ट, क्या कलर लेने का है इधर, इतना लिमिटेड चॉइसेस है ना। नेक्स्ट 1 2 3 6, 1 लिया मैंने, ये दिख ही नहीं रहा है, 1 2 3 और 6, ये जाएगा थर्ड और गेट। सो ये तुम्हारा इम्प्लीमेंट हो गया, 3 फंक्शन वाला डीमक्स। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? समझा Yes, क्या? ma'am. Yes, ma'am. अब ये वाला तुम लोग खुद कर पाओगे ना, ये मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ स्लाइड, ट्राई करना, ये सिमिलर टाइप है, सिर्फ नंबर्स अलग अलग है। 1:8 वाला डीमक्स फॉर मल्टीपल फंक्शन आउटपुट, you'll be able to try ना all of you? Yes, ma'am. Okay, ओके, स्टार्टिंग विद डिकोडर। सो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर हो गया अपना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ इट, ओके। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है डिकोडर। डिकोडर इज एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन है, ठीक है। और एनकोडर जो है वो मल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन है, और ये मेजर यूज होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या कोई भी डिजिटाइज सर्किट्स में। So what is a decoder? Decoder is a circuit which converts n binary inputs into m decimal outputs. तो बेसिकली डिकोडर एक ऐसा सर्किट है जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेगा। So basically it is what circuit? It is a converter of binary to decimal, जो हमने कन्वर्जन देखे थे यूनिट 1 में। तो डिकोडर वो वाला सर्किट है, इट विल कन्वर्ट बाइनरी इनपुट्स टू डेसिमल आउटपुट्स, बाइनरी इनपुट डेसिमल आउटपुट। सो डिकोडर सर्किट में n इनपुट बाइनरी नंबर है, लेट्स से, तो कितना भी इनपुट का हो सकता है, 2 इनपुट हो सकता है, 4 इनपुट हो सकता है, 60 इनपुट्स भी हो सकते हैं, एंड वी विल हैव देन m आउटपुट डेसिमल्स, डेसिमल आउटपुट्स रहेंगे जितने भी तुम्हारे सर्किट के हैं उतने, ठीक है। तो ये बेसिक लॉजिक सर्किट हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा इनपुट कॉम्बिनेशन मैंने दिया 1001, तो ये जो बाइनरी वैल्यू है उसका एक्चुअली डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 9। तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 9। तो 9 करके वहां पे दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे लॉजिक क्रिएट किया जाता है। अगर 4 इनपुट, अगर मेरे 4 इनपुट वाले बाइनरी इनपुट्स है, तो डेसिमल वैल्यूज 4 इनपुट इनपुट के हिसाब से मैक्सिमम होते हैं 10, 0 to 9, 0 to 9, बिकॉज 0 to 9 इज ओनली द डेसिमल नंबर। तो 10 आउटपुट्स होंगे, O0 O1 O2 लाइक दैट अप टू सो ऑन। तो जो मेरा 9th आउटपुट होगा वो हाई बनेगा, इंडिकेटिंग दैट 1001 इज बेसिकली डेसिमल 9। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. सो ये बेसिक डिकोडर है एक। 0 to 3 decimal values we have taken for the decimal outputs, and S1 S0 are giving us the binary values। हाँ, तो बेसिकली डीमक्स वाला सर्किट है ये। S1 S0 सिलेक्ट इनपुट्स है which are the binary, which are representing the binary values, ठीक है, which are representing the binary values। तो ये बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और ये सारे तुम्हारे डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y0, y1, y2, y3। तो जब भी हम बेसिकली y0 बोलते हैं तो बेसिकली इट इज डेसिमल 0, y1 बोलते हैं तो बेसिकली इट इज डेसिमल 1, y2 is decimal 2 and y3 is representing decimal 3. So when select inputs is given as 0 0, तो 0 0 stands for decimal 0, तो y0 आउटपुट हाई बन जाता है, इसके लिए वो 1 है, बाकी सब 0 है। जब भी S1 S0 0 1 होता है तो इट इज बेसिकली डेसिमल 1, तो y1 हाई होगा, बाकी सब 0 होंगे। जब भी S1 S0 1 0 है तो y2 सिलेक्ट होगा, बाकी सब 0 होंगे। और जब भी 1 1 है तो y3 सिलेक्ट होगा, बाकी सब 0 होंगे। Okay, so whichever output is high, it will indicate that decimal value depending upon the position of the output. Did you understand the logic table? समझा ना? Yes, ma'am. उसके हिसाब से लॉजिक डायग्राम आएगा। अभी ये लॉजिक डायग्राम हम लोग ने देखा है, ये कौन सा वाला लॉजिक डायग्राम है? जिस दिस लॉजिक डायग्राम 1:4 डीमक्स वाला ना? Yes or no? Yes, ma'am. तो उसी हिसाब से 1:4 डीमक्स यूज करके हम ये डिकोडर सर्किट बना सकते हैं, जिसमें S1 S0 हमारे सिलेक्ट इनपुट्स होंगे, मींस बेसिकली द बाइनरी वैल्यूज, एंड y0 y1 y2 y3 हमारे डेसिमल वैल्यूज होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिकोडर? Yes, ma'am. अभी ये सिमिलर टाइप का सम है। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग यूजिंग 4:16 डिकोडर। 4:16 डिकोडर का मतलब है 16 आउटपुट है, यानी कि y0 to y15, ठीक है, और 4 इनपुट्स है। तो बेसिकली वो 4 इनपुट्स क्या है? तुम्हारे बाइनरी इनपुट्स है। ओके, तुम्हारे बाइनरी इनपुट्स है, दैट इज इट विल बी हैविंग सेट इनपुट लाइंस S3 S2 S1 S0 और अनेबल। तो ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो सेम तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा जैसे हमने डीमक्स इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन F1 देखो, 1 2 4 7 8 11 12 13। तो 1 2 ग्रीन ग्रीन लाइंस देखो, 4 7 8 11 12 13, ये सारे हमने एक और गेट को दिए और उसका आउटपुट बनेगा F1 फंक्शन। सेम वे नेक्स्ट का 10 लिया हमने, 10 फिर 12 13 और 14 हमने दिए सेकेंड और गेट को, विच बिकम्स योर फंक्शन F2। एंड देन द लास्ट वन इज 1 लिया हमने, रेड लाइंस देखो, 5 8 और 10 ये दिए हमने थर्ड और गेट को, दैट बिकम्स योर फंक्शन F3। So that becomes the implementation of the given function using 4:16 decoder. So decoder हो या demux हो, logic diagram draw करने का same ही है। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Decoder समझा। अभी next moving on quickly to encoder. Encoder is what? उसका उल्टा, decimal to binary converter। तो एनकोडर में डेसिमल इनपुट्स होते हैं और बाइनरी आउटपुट होता है, यानी कि अगर तुमने एनकोडर में मान लो इनपुट दिया, एनकोडर में तुमने इनपुट दिया 8, ये डेसिमल वैल्यू है, तो उसका बाइनरी आउटपुट आना चाहिए 1 0 0 0, ये उसका आउटपुट आएगा। तो इट इज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें m इनपुट लाइंस होंगे और n आउटपुट लाइंस होंगे। m इनपुट लाइंस डेसिमल इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि अगर तुम्हें 8 को सिलेक्ट करना है इनपुट देने के लिए, तो 8th लाइन विल बी मेड हाई एंड देन आउटपुट अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे मिलेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट ना, ऑल ऑफ यू? जैसे ये बेसिक है 8:3 लाइन एनकोडर, तो उसमें 8 डेसिमल इनपुट्स है,
Inputs are namely I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. तो जब भी हम ये ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि I0 is representing decimal 0, I1 is representing decimal 1, I2 2, I3 3, I4 4, I5 5, I6 6 और I7 7. ये डेसिमल इनपुट्स हो गए 0 to 7 और 3 बाइनरी इनपुट्स है. तो ये बाइनरी इनपुट्स हुए तुम्हारे, आउटपुट्स है सॉरी, ये बाइनरी आउटपुट्स हुए तुम्हारे Q2 Q1 Q0. हाँ, तो जैसे तुम अगर I0 लाइन हाई करते हो, this input you are making as high means it is indicating that you have selected decimal 0, so expected output will be 0 0 0. If you are selecting 4 as high means it indicates you have selected decimal input as 4, तो 4 का output expected क्या होगा 1 0 0. accordingly तुम्हें वो output मिलेगा. Okay, so same way if you select a particular input, let's say you're selecting y1 as high, then output expected is 0 0 1. If you're selecting I2 as high, then expected output is 0 1 0. I3 is high 0 1 1. I4 is high 1 0 0. I5 is high 1 0 1. I6 is high 1 1 0. I7 is high 1 1 1. Did you understand all of you? Yes, ma'am. Okay. तो ये 8:3 लाइन एनकोडर हुआ. वैसे ही 10:4 लाइन एनकोडर. हाँ, 10:4 लाइन उसके हिसाब से आएगा. 10:4 लाइन एनकोडर में सेम पैटर्न में I0 to I9 हमारे 10 इनपुट्स होंगे. 0 1 2 3 which will be representing 10 inputs from 0 to 9. So means I0 is representing decimal 0, I1 is representing decimal 1, I2 is representing decimal 2, so on like that. I9 is representing decimal 9. जो suffix लिखा है वो उसका decimal value है. And ABCD binary outputs है, 4 binary outputs ABCD. A is MSB, D is LSB. तो यहाँ पे भी same pattern में जाएगा. I0 अगर select होता है 1, तो उसका मतलब है binary output होगा हमारा 0 0 0 0. If I1 is selected as 1, output होगा 0 0 0 1. If I4 is 1, output होगा 0 1 0 0. If I7 is 1, output होगा 0 1 1 1. I8 select होगा तो output is 1 0 0 0. और I9 select होगा तो output is 1 0 0 1. Accordingly, you will get the outputs. That is the basic truth table of your 10:4 line encoder. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. So ये तुम्हारा 10:4 लाइन एनकोडर का लॉजिक डायग्राम हुआ. हाँ, तो just a moment. ये निकालते कैसे है वो बताती हूँ. So here we are taking 10 input lines I0 to I9. These are M input lines. ठीक है, और आउटपुट हमें मिलेंगे बाइनरी आउटपुट. तो उसके लिए हम चूज करने वाले हैं 4 OR gates. A, which is your MSB, then B, C and D. ठीक है, तो अभी I0 जब भी सिलेक्ट होता है तो आउटपुट हमारा आना चाहिए
0 0 0 0। टेबल के पास देखो 0 0 0 0, यानी कि I0 लाइन से कोई भी OR गेट में आउटपुट नहीं जाएगा, तो ही आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी 0 0 0 0। वरना OR गेट का लॉजिक क्या है? इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट विल बी हाई। So from I0 line, we will not give the input to any of the OR gates. Okay. Now starting with I1. I1 में हम inputs, हमारा expected output क्या है? This is expected output I am writing. This is expected output. तो जब भी I1 select होगा, तो expected output is 0 0 0 1. तो वो I1 line से सिर्फ हम एक input देंगे to the D output OR gate or the fourth OR gate, ताकि जब ये I1 हाई करते हैं तो ये वन ऑफ द इनपुट टू D OR गेट बिकम्स हाई एंड आउटपुट ऑफ D इज हाई। एंड ABC में हमने नहीं दिया है करके उसका आउटपुट 0 0 0 बनेगा। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बी 0 0 0 1। समझा क्या मैं क्या बोल रही हूँ? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? No, ma'am. Can you repeat? हाँ, सी 10:4 लाइन एनकोडर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग और गेट्स यूज करके। तो ये हमारे 10 इनपुट्स होंगे I0 to I9। ठीक है। आउटपुट्स ये हमारे इनपुट लाइन है। ये इनपुट लाइन यानी कि क्या? ये स्विच बॉक्स से आता है। स्विच बॉक्स इज जस्ट लाइक अ बाइनरी स्विच बॉक्स। हाँ, जहाँ पे तुम स्विचेस रखते हो, वो बाइनरी स्विच बॉक्स क्या होता है मैं बताती हूँ तुम्हें। ये स्विच बॉक्स है। दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये स्विचेस होते हैं। तो ये बाइनरी डिजिट की तरह हो गया। अगर ये स्विच लो है ना, तो ये एलईडी पोजीशन है, यहाँ पे वो ऑफ रहता है। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से बाइनरी 0 अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली 0 वोल्ट। जब भी तुम स्विच ऑन करते हो तो एलईडी ऑन होता है। इसका मतलब है कि ये वाले जो स्विच पोजीशन है ना, इसके थ्रू वी आर अलाउिंग द करंट टू फ्लो। वोल्टेज वैल्यू विल बी 5 वोल्ट्स। तो ऐसे हम 10 स्विचेस लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 स्विचेस लेते हैं और वो 10 स्विचेस वाया हम देंगे और गेट्स को। समझा? तो जो 0th पोजीशन है, अगर मान लो ये फर्स्ट वाला 0 है जहां पे मेरा कर्सर है येलो कलर का, तो फ्रॉम देयर वी विल नॉट गिव टू इनपुट ऑफ एनी और गेट। क्यों? बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 0 0 0 0। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 0 0 0 0। इसके लिए I0 से मैंने कोई भी और गेट में इनपुट नहीं दिया ताकि मेरा आउटपुट आए 0 0 0 0। ओके, बट इफ I1 I am selecting, my expected output will be 0 0 0 1। इसके लिए I1 लाइन से हम एक इनपुट लेके वो और गेट को देंगे। हाँ, तो जब भी I1 हाई होता है तो 1, this binary 1 goes to one of the input of D OR gate and D output is high because OR gate का लॉजिक क्या है? any one of the input is high, output is high। तो D हाई बन जाता है। वो लाइन से हमने कोई भी और दूसरे OR गेट्स में इनपुट नहीं दिया है, तो उसका आउटपुट बनेगा 0 0 0 1। अभी समझा क्या? Yes, ma'am. वैसे ही नेक्स्ट अभी I2 है, तो अगर I2 सिलेक्ट होगा तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट इज
0010 1 यानी कि C, तो मैं I2 से सिर्फ C गेट में इनपुट दूंगी और किधर नहीं दूंगी, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा 0010। टेबल के पास देखो, अभी I3 सिलेक्ट करूंगी तो एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 0011, तो I3 से मैं C में भी दूंगी और D में भी दूंगी। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. हाँ, 4 0100 तो B, तो I4 से आई विल गिव इट ओनली इन B, ओनली इन B, ठीक है। देन 5, so when I'm selecting 5 it is 0101, तो B और D, तो 5 से मैं दूंगी B में और D में, okay। Then 6, from for 6 it is 0110, so in B as well as in C, and 7 0111, तो B में भी जाएगा 7 से, C में भी जाएगा और D में भी जाएगा, हाँ। देन 8 से ओनली इन A, in nobody else, और 9 से in A as well as in D. Did you understand now? Yes, ma'am. लॉजिकली ध्यान में रखोगे तो इजी है सारे डायग्राम निकालने के लिए, तो उसका बेसिक लॉजिक ध्यान में रखो कि करते क्या है हम लोग। अभी क्या मुझे ये बाय हार्टेड नहीं है, ना ही मैं देख रही हूँ, बट मुझे लॉजिक पता है तो मैं निकाल पाती हूँ, ऐसा है। So it is nothing that you cannot do. You can do definitely. You are more smarter and intelligent than me. So it is nothing. You will be able to do it. Is this clear? All of you, 10:4 line encoder. Yes, ma'am. It's clear. Okay. So अभी यहाँ पे एक ये सर्किट का ड्रॉबैक क्या है? इस सर्किट का ड्रॉबैक क्या है? क्या रहेगा ड्रॉबैक? सोचो, अगर मान लो मैंने I3, हाँ, और I8 मैंने ऑन किया, क्या ऑन कर रही हूं मैं? I3 and I8. If I3 and I8 I make it as on, okay, then what will be my expected output? I3 के लिए मुझे CD हाई मिलेगा, बाकी जीरो, और I8 के लिए मुझे A हाई मिलेगा, बाकी सब जीरोस। तो मुझे एक्चुअली आउटपुट दिखाई देगा 1011, बराबर ना? Actually my output seen will be 1011, means which will neither represent 3 nor it will represent 8. Yes or no? Are you getting my point? The output is neither ma'am. going to represent 3 nor it is going to represent 8. Right? So this becomes drawback of 10:4 line encoder circuit which is constructed with a basic gate. Because हमने इसमें basic gates use किए हैं construct करने के लिए, which is OR gate. तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है ये सर्किट का, कि एक टाइम पे हम एक ही कोई इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं तो ही हमें राइट आउटपुट मिलेगा, वरना हमें राइट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये ड्रॉबैक को हम कैसे कवर अप करते हैं? सो दिस ड्रॉबैक इज कवर्ड अप, ओके, बाय यूजिंग अ 10:4 लाइन एनकोडर, जो हम आईसी यूज करते हैं, IC 74147। तो ये प्रायोरिटी एनकोडर है, ये आईसी होता है, बिल्डअप सर्किट है ऑलरेडी अंदर, जिसमें 10 इनपुट्स है, I0 to I9, और 4 आउटपुट्स है, ABCD, और उसके अलावा VCC और ग्राउंड के स्विचेस होते हैं। तो इसमें कैसा है, प्रायोरिटी सेटअप है। अगर तुम I0, ये प्रायोरिटी इनकोडर में तुम्हारे इनपुट्स जो है वो एक्टिव लो है, आउटपुट्स जो है वो भी एक्टिव लो है। अभी एक्टिव लो का मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान दो। एक्टिव लो का मतलब है, एक्टिव लो मीन्स when zero appears, it indicates
that the terminal is activated. एक्टिवेटेड या फिर enabled बोलो या फिर ऑन बोलो, तो ये इनपुट हो या आउटपुट हो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर 0 आता है तो उसका मतलब है वो एक्टिवेटेड है, अगर 1 आएगा तो उसका मतलब है वो डीएक्टिवेटेड है, अगर 1 है तो वो डिसेबल्ड है या फिर वो ऑफ है। ठीक है, तो I0 एक्टिव लो, ध्यान दो ट्रुथ टेबल पे, या फिर मैं ये लिख के बताती हूँ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे क्या होगा कि थोड़ा तुम्हें समझने में तकलीफ हो सकती है, तो जस्ट आई विल राइट इट अप एंड शो। अभी ध्यान देना, तो I0 जब भी मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मैं उसे 0 दूंगी, बाकी सबको 1 रखूंगी ताकि वो डीएक्टिवेट हो जाए। उल्टा कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, तो जब भी I0 सिलेक्टेड है बाय गिविंग इट एज 0, तो मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है मेरा, एक्चुअली 0 0 0 0, बट वो क्या आएगा एक्टिव लो आउटपुट से, तो वो भी आएगा 1 1 1 1। समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? No, ma'am. अरे अभी तक तुम जो देख रहे थे कॉन्सेप्ट वो एक्टिव हाई कॉन्सेप्ट था, यानी कि अगर तुम I0 को 1 देते हो, कीपिंग I1 to I9 as 0, then your expected output ABCD will be 0 0 0 0, बराबर है। जब भी तुम I1 को 1 कर देते हो तो expected output will be 0 0 0 1 ना। if you make I2 as high then expected output will be 0 0 1 0, बराबर ना। डेसिमल टू बाइनरी Yes, कन्वर्जन। ma'am. हाँ, इसका अपोजिट आएगा एक्टिव लो का मतलब है, एक्टिव लो यानी कि कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने I0 जीरो डेसिमल को एक्टिवेट करने के लिए 0 दिया इनपुट में, यानी कि उसको डिसेबल किया, ऑफ किया तो वो एक्टिवेट हो गया, उल्टा कॉन्सेप्ट। बाकी सब मैंने हाई दिया तो वो डीएक्टिवेटेड है, तो मेरा आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए, 0 0 0 0 आना चाहिए, बट वो अभी क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1 आएगा। समझा अभी? Yes, ma'am. Yes. हाँ, इसके लिए मैंने वो टेबल को पूरा इरेज किया और मैं लिख के बता रही हूँ ताकि दिमाग में जाए तुम्हारे। अभी मैं I1 को एक्टिवेट करती हूँ, बाकी सबको हाई रखती हूँ। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट अभी क्या आएगा, क्या एक्चुअली आना चाहिए 0 0 0 1, बट उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 1 1 0। आर यू गेटिंग इट नाउ ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. अभी I2 I have activated by giving it as 0, keeping remaining as high. So my expected output should be 0 0 1 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 1 0 1। When I make I3 as low, it is 3 output 1 1 0 0. I4 as low, then 1 0 1 1. I5 as low, 1 0 1 0. I6 as low, 1 0 0 0. I7 नहीं, 6 में गड़बड़ किया मैंने, 1 0 0 1 आएगा। Then I7 as low, 1 0 0 0. I8 as low, then 0 1 1 1. I9 as low, then 0 1 1 0. समझा ना? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे ये बाकी सब हाई रहेंगी। हाँ,
ये बेसिक टेबल हुआ। अभी प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्रायोरिटी एनकोडर्स मतलब हम ड्रॉबैक कवर अप कर रहे, पिछला सर्किट में जो डिसएडवांटेज था उसका। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि इफ टू इनपुट्स ऑफ डेसिमल simultaneously become activated, then the priority will be given to input with highest decimal value. यानी कि अगर ये सर्किट में मान लो मैंने I3 और I6 ऑन किया, जस्ट अ मोमेंट ऑल ऑफ यू, 2 minutes. So here, if I3 and I6 both become high simultaneously, then output will be shown for what? Output will be shown for I6 because I6 is having higher priority as compared to I3. तो तुम्हें आउटपुट एक्चुअली ये दिखाई देगा 1001. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अगर तीन इनपुट साइमल्टेनियसली हाई हो गए, मान लो I3, I6 और I9, then which output will be seen? I9. Yes, I9. Very good. So in priority encoders, if accidentally you happen to make two inputs as high or three inputs as high accidentally, then the priority will be given to highest decimal input value and that output will be shown. So that is the reason that when I1 is made as high, I0 becomes a don't care condition. Means it can be 0 or 1. It is not going to have any effect. If I1 is high, then the output will be shown for I1. Similarly, if I2 is high, I1 and I0 become don't care condition. Don't care का मतलब है 0 भी हो सकता है, input 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Similarly, when I3 is made high, I2, I1 and I0 becomes don't care condition. Same way, if I4 is made high, I3, I2, I1, I0 becomes don't care condition. If I5 is high, 4, 3, 2, 1, 0 become don't care condition. If I6 is high, then 5, 4, 3, 2, 1, 0 become don't care condition. Any one of them can be high, but it doesn't make any difference. It will show you output for I6 only. If I7 is high, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 become don't care condition. If I7, I8 is high, then 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 become don't care. If I9 is high, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 become don't care condition. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. So X stands for don't care condition over here. Is this clear, students? Yes, ma'am. Okay. So that completes our encoders, and with that we complete MUX and DMUX chapter. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Starting with flip-flops. I can start with flip-flops now.
Ma'am, can you give us 5 minutes break? Yes, I can give you 5 minutes break, but then I am having a corresponding lecture after that. ठीक है, एनीवे कल हम लोग शुरू करते हैं फ्लिप फ्लॉप। कितना अभी बजा? 10:05 हो गया ना। ठीक है, वी विल स्टार्ट द फ्लिप फ्लॉप्स टुमारो टू टेक अभी आज कोई और लेक्चर होने वाला है तुमको? No, ma'am, but VP ma'am has said that she will take, but not yet वो scheduled. डब्ल्यूपी मैम, हाँ सरोजिनी मैम, हाँ शी हैज Sorry, आल्सो sorry, टोल्ड। W. हाँ डब्ल्यूपी मैम मत बोलो यार ऐसा। अच्छा मुझे तुम लोग ऐसे ही बोलते रहोगे ना, डी वाली मैम, डी मैम Yes, ma'am. ना। हाँ डी मैम, दी मैम, दी मैम चलेगा, चलो दी। मीन्स अभी आंटी के उम्र में अगर मुझे कोई दी बोल रहा है तो मुझे खुशी होना चाहिए वो चीज के लिए। सो आई एम हैप्पी विद दी नेम। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। यू प्रॉपरली फ्लिप फ्लॉप्स में फ्रेशली स्टार्ट करूंगी, बट ये अभी 43 दिखाई दे रहे हैं मुझे भी। जब भी मैंने लॉग इन किया, मैंने भी थोड़ा, मेरा लॉग इन नहीं हो पा रहा था, मैंने वापस अनइंस्टॉल करके मुझे सब वो करना पड़ा। सुबह सुबह 7:30 से मेरा वो चालू था, तो जाके मैं 8:05 को लॉग इन कर पाई। कल मैं शार्प 8 बजे चालू करूंगी। और फ्लिप फ्लॉप्स अगर तुम फ्रेशली सुनोगे ना तो बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके लिए मैं अभी नहीं करना चाहती बिकॉज अभी तुम थोड़ा ओवरहैंग भी हो गए हो। सो आई डोंट वांट टू लाइक थोड़ा ज्यादा तुम्हें मुझे